Hello students, here we are going to start a second part of stereochemistry. Now we are going to discuss about the asymmetric and chiral molecule. So the molecule is called as asymmetric if it has no element of symmetry, that is plane of symmetry, center of symmetry and axis of symmetry. So if in a molecule there is a presence of asymmetric carbon atom and it does not have any kind of plane, center or axis of symmetry, then the whole molecule is called as a asymmetric. And all asymmetric molecules are chiral. So अगर आपको identify करना है whether the molecule is asymmetric or not, initially you find out whether there is a presence of chiral carbon or not, or asymmetric carbon. Asymmetric carbon are those one to which 4 different atoms or the group of atoms are attached. And if in a molecule there is a presence of such a kind of asymmetric carbon atom and it does not have any kind of element of symmetry, then definitely the whole molecule is called as an asymmetric molecule, and all asymmetric molecules are chiral. So these are the some examples of asymmetric molecules. Now it is very important to know about the elements of symmetry, how to identify the elements of symmetry. सबसे पहले हम देखेंगे the plane of symmetry. What is meant by the plane of symmetry? So an imaginary plane which divides the molecule into two exact same parts, then it possesses a plane of symmetry. So अगर किसी molecule में हम एक vertical plane ऐड करेंगे या फिर horizontal plane ऐड करेंगे और जब molecule दो टुकड़ों में divide हो जाएगा, so अगर दोनों भी टुकड़े same है, then हम कह सकते हैं कि molecule को क्या है, plane of symmetry है. जैसे this is the structure of malic acid. When we divide the molecule by adding a horizontal plane, तो वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के, यहाँ पे HCCOH, यहाँ पे HCCOH. अब डिवाइड होने के बाद दोनों भी पार्ट क्या है, सेम है. सो हम कह सकते हैं कि दैट मैलिक एसिड हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. सेकेंडली, सपोज वी हैव सच अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल एंड अगर हम इसमें एक वर्टिकल प्लेन ऐड करते हैं तो वो उसको इस तरह के दो पार्ट में डिवाइड कर देगी. अब दोनों भी पार्ट फिर से सेम है, इट मींस दिस मॉलिक्यूल आल्सो हैविंग अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो सिंपल, by adding a vertical plane and a horizontal plane, if a molecule is divided into the same part, then the molecule possesses a plane of symmetry. And अगर वो same part में divide नहीं होगा, then the molecule does not have a plane of symmetry. Second one is the center of symmetry. The molecule is said to have a center of symmetry if any line can drawn through the center of molecule meet identical atoms at same distance from the center of molecule. So अगर हमारे पास ये molecule है, so this is the center of a molecule, and अगर हम एक line draw करते हैं through a center, और वो line draw करने के बाद अगर लाइन के एंड में अगर सेम एटम प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल को सेंटर ऑफ सिमेट्री है. अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस साइड में ब्रोमीन आएगा, इस साइड में भी ब्रोमीन आएगा. सो प्रेजेंस ऑफ सेम एटम, ब्रोमीन ब्रोमीन, दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल possess a center of symmetry. सपोज एक साइड में ब्रोमीन या फिर एक साइड में क्लोरीन होता, ऐसे केस में हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल को सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है. तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देन एक्सिस ऑफ सिमेट्री. When an imaginary axis passes through the midpoint of molecule, it is perpendicular to the plane of molecule. And when rotation of molecule is carried out through 180 degree about that axis, it gives identical molecule. Then this possesses a axis of symmetry. So अगर
मॉलिक्यूल के मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर प्लेन ऐड किया जाए और मॉलिक्यूल को रोटेट किया जाए थ्रू 180 डिग्री, and after the rotation if we obtain a identical molecule then the whole molecule possesses a axis of symmetry. सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और हमने एक मिड पॉइंट से एक इमेजिनरी प्लेन ऐड कर दिया और मॉलिक्यूल को अगर हम रोटेट करते हैं थ्रू अ 180 डिग्री, सो रोटेट करने के बाद, इसको ऐसे रोटेट करने के बाद हमें सेम मॉलिक्यूल मिल रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सेम जगह पे हाइड्रोजन है, तो कोई भी एटम की पोजीशन यहाँ पे चेंज नहीं हुई है। सो अगर आफ्टर रोटेशन इफ यू हैव अ सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल देन डेफिनेटली वी कैन से दैट द मॉलिक्यूल हैविंग अ एक्सिस ऑफ सिमेट्री. सो दीज आर द थ्री एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री: प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड the axis of symmetry. और in a asymmetric molecule इनमें से कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. अगर सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो उस मॉलिक्यूल को हम असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं करेंगे. Then we talk about the enantiomer or the enantiomers. The isomer which are non-superimposable mirror images of each other are called as an enantiomer. सो दो कोई भी आइसोमर, दो कोई भी कंपाउंड अगर एक दूसरे के मिरर इमेजेस है एंड वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोज है तो उन दोनों को क्या कहा जाएगा? इनैंटियोमर कहा जाएगा. सपोज कंसिडर आवर टू हैंड्स. अगर दोनों हाथों को हम ऐसे आमने सामने रखते हैं तो वो एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस है, राइट? बट जब हम अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखते हैं तो इस तरह का नॉन सुपर इम्पोज हो जाता है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ मिरर इमेजेस ऑफ हैंड्स एंड दिस फिगर शोज द इट्स नॉन सुपर इम्पोजेबल नेचर. सो in this case our two hands are called as a enantiomer of each other because they are mirror images and non superimposable. Same, these two molecules are mirror images are of each other and again non superimposable, so called as an enantiomer. These are also a pair of enantiomer. So this is the perfect example of enantiomer. These two molecules are mirror images of each other. Why? Because COH COH front में है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, OH OH. बट अगर इस मॉलिक्यूल को अगर हम इस मॉलिक्यूल के ऊपर रख दें तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में CH3 है बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में H एंड OH है. तो इसका मतलब होता है कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है. सो अगर मिरर इमेजेस है एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो उनको हम कहते हैं enantiomer. Next one is the diastereomer. The isomers which are not mirror images of each other are called as a diastereomer. So अगर कोई दो आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है तो हम ऐसे आइसोमर्स को कहते हैं डायस्टेरोमर. So simply the stereoisomer that are not enantiomers are called as a diastereomer. Consider this molecule and second molecule. First one, second one. These are mirror images of each other which are non superimposable. So the first one and second one, इनको हम क्या कहेंगे? enantiomer. उसी तरह से थर्ड मॉलिक्यूल एंड फोर्थ मॉलिक्यूल फिर से ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये भी क्या हो गया? अ पेयर ऑफ enantiomer. So first and second, while third and fourth are called as a pair of enantiomer. But the first one and third one, देखो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है क्योंकि यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, चलेगा, बट परफेक्टली दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. और जो कोई भी आइसोमर मिरर इमेज नहीं होता, इट इज कॉल्ड एज अ डायस्टेरोमर. सो द फर्स्ट वन and the third one molecule are called as a pair of diastereomer. Same again, the second molecule and the fourth molecule, again they are not mirror images of each other. यहाँ पे आपको दिख रहा है, so again they are called as a pair of diastereomer. So simple definition of enantiomer is that the isomer which are mirror images of each other and non superimposable are called as an enantiomer, and the isomer which are not mirror images of each other and again not superimposable are called as a pair of diastereomer.
Next, we discuss about the R and S configuration. The R and S configuration was proposed by Kahn, Ingold, and Prelog. अब in order to provide a R and S configuration to a molecule, हमारे पास कुछ सीक्वेंस रूल है. तो किस मॉलिक्यूल को R कहा जाएगा, किसको S कहा जाएगा, उसके कुछ सीक्वेंस रूल. फर्स्ट रूल कहता है एटम और group of atom directly bonded to asymmetric carbon atom are arranged in order of decreasing atomic number and assign the property 1 2 3 4. So अगर किसी asymmetric carbon को 4 atoms या फिर group of atom attach है तो on the basis of atomic number जिसका higher atomic number होगा उसको हम first priority देंगे and then second, third, fourth and so on up to 4 बोल लिया. Second one, when two or more group possess same atom, then consider the other atom joined to that carbon atom and so on. So अगर किसी दो ग्रुप में सेम एटम्स प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे तो हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट एटम पे मूव करेंगे. जैसे देखो, अगर कहीं पे मिथिल ग्रुप अटैच है, इथिल ग्रुप अटैच है या फिर प्रोपिल ग्रुप अटैच है, हर जगह पे कार्बन कार्बन सेम है. बट मिथिल में क्या है, आफ्टर कार्बन वी हैव हाइड्रोजन. इन इथिल आफ्टर कार्बन वी हैव नेक्स्ट कार्बन एंड इन प्रोपिल आफ्टर कार्बन वी हैव टू अदर कार्बन्स. सो सेकंड एटम जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे. सो इन केस ऑफ मिथिल, इथिल एंड प्रोपिल, प्रोपिल हैविंग द हायर प्रायोरिटी, देन इथिल एंड देन मिथिल. थर्ड वन, if the first atom of two groups have same substituent of higher atomic number, the one with more substituent takes priority. कि अगर सेम एटम्स प्रेजेंट है हैविंग एटॉमिक नंबर, बट जहां पे मोर नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको हम हायर प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू द अदर वन. एंड fourth point, a doubly or triply bonded atom present in a group is considered equivalent to 2 or 3 singly bonded atom. कहीं पे क्या हो जाएगा, आइदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा. तो ऐसे केस में हमको नंबरिंग कैसे करना है, देखो, C डबल बॉन्ड वो इज इक्वल टू द कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड अगेन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. ओके, and the C triple bond here is equivalent to the carbon single bond nitrogen and again a single bond nitrogen. तो इस तरह से हम डबली बॉन्डेड मॉलिक्यूल एंड द ट्रिपली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सीक्वेंस रूल वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द R and S configuration to a molecule. सपोज अगर हमारे पास 1,1 क्लोरो ब्रोमो इथेन एज अ असिमेट्रिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 1,1 क्लोरो ब्रोमो इथेन. अब यहाँ पे 4 डिफरेंट एटम, ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है, लाइक ब्रोमीन, क्लोरीन और मिथिल ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन. आउट ऑफ देम द ब्रोमीन हैविंग अ हायर एटॉमिक नंबर दैट इज 35, क्लोरीन हैविंग अ 17, कार्बन हैविंग 12 एंड द हाइड्रोजन हैविंग अ 1. सो अगर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, सेकंड क्लोरीन को जाएगी, थर्ड मिथिल के कार्बन को जाएंगी एंड फोर्थ हाइड्रोजन को जाएंगी. अब इस तरह से नंबरिंग करने के बाद हम रोटेशन प्रोवाइड करेंगे मॉलिक्यूल को कि वो आइदर क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज. रोटेशन कैसे प्रोवाइड करना है, आफ्टर 1 2 एंड 3 तो वो रोटेशन इस तरह से आएगा ना, इट इज कॉल्ड एज अ क्लॉकवाइज रोटेशन लाइक दिस वन. सो अगर रोटेशन क्लॉकवाइज आता है देन दिस मॉलिक्यूल हैविंग अ R configuration, एंड अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज आता तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल को S configuration. सेम मॉलिक्यूल है, जस्ट हमने थोड़ी अरेंजमेंट चेंज कर दी. ब्रोमीन को फर्स्ट, क्लोरीन को सेकंड, कार्बन को थर्ड एंड द हाइड्रोजन को फोर्थ नंबर आ गया. अब यहाँ पे जब हम फर्स्ट से सेकंड एंड थर्ड को जाते हैं तो मॉलिक्यूल को रोटेशन कैसा आता है, एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज. दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल हैविंग द S configuration. तो देखो
clockwise direction R configuration, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन S configuration. So इस तरीके से हम मॉलिक्यूल को R and S configuration प्रोवाइड करते हैं. हम सेकेंड मॉलिक्यूल लेंगे विच इज अ लैक्टिक एसिड. असिमेट्रिक कार्बन एटम है क्योंकि उसको 4 ग्रुप्स अटैच है. एक है COH, OH, CH3 एंड EH. अब इन सब में यहाँ पे 2 कार्बन कार्बन अटैच है, यहाँ एक ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है. अब इस केस में OH ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है. देन इन केस ऑफ COH एंड CH3 किसको प्रायोरिटी जाएगी क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है. बट इन COH आफ्टर कार्बन वी हैव ऑक्सीजन एंड इन CH3 आफ्टर कार्बन वी हैव हाइड्रोजन. सो अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन. तो डेफिनेटली इन केस ऑफ COH एंड CH3 दिस COH ग्रुप हायर प्रायोरिटी. तो सेकंड नंबर पे हमने COH को रख दिया. थर्ड पे जाएगा CH3 एंड फोर्थ में जाएगा H. अब आप देख सकते हो डायरेक्शन कैसे आएगा 1 2 3. तो मॉलिक्यूल को ऐसे घुमाना है. तो ये रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन. दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल हैविंग अ R configuration. उसी मॉलिक्यूल को जब हम इस तरह से लिखते हैं OH COH CH3 तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आता है. सो हम कहेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूल हैविंग द S configuration. So students आपको करना क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर आपको 1 2 3 4 नंबर प्रोवाइड करने हैं. जहां पे सेम एटम्स आते हैं तो आप नेक्स्ट एटम पे जाओ, उसका एटॉमिक नंबर कंपेयर करो एंड नंबरिंग करने के बाद अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो R configuration एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो हो जाएगा S configuration. उसी तरीके से हम इन चारों मॉलिक्यूल्स को RS नोमेनक्लेचर या फिर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे जाएगी, OH को फर्स्ट, इस इथिल ग्रुप को सेकंड, मिथिल ग्रुप को थर्ड एंड हाइड्रोजन को फोर्थ. सो रोटेशन कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. सो द मॉलिक्यूल हैविंग S configuration. यहाँ पे ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, ऑक्सीजन को सेकंड, इथिल के कार्बन को थर्ड एंड मिथिल के कार्बन को फोर्थ. कैसा रोटेशन आएगा, इस तरह से. ये हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन. सो द मॉलिक्यूल हैविंग R configuration. यहाँ पे देखो ब्रोमीन को फर्स्ट, क्लोरीन को सेकंड, फ्लोरीन को थर्ड एंड हाइड्रोजन को फोर्थ. अगेन क्लॉकवाइज रोटेशन. सो इट इज हैविंग अ R configuration. एंड जब मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखते हैं, ब्रोमीन फर्स्ट, क्लोरीन सेकंड, फ्लोरीन थर्ड एंड हाइड्रोजन फोर्थ, कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे. सो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. सो द मॉलिक्यूल हैविंग अ S configuration. So this is all about the R and S configuration.